Yeah, so when you guys know Laplace, कौन? Laplace, नहीं. uh, he was, I think, Laplace का कहाँ नाम आता है? Laplace, I've heard his name in physics, I believe. Also in mathematics, I think. Yeah, so when Laplace was asked, what do you think, who is the greatest mathematician in Germany? He replied, Pfaff, probably. And then the person who was asking the questioner indicated that उसको लगा कि गॉस आंसर होगा. तो लैपलेस ने बोला कि फैफ इज बाय फार द ग्रेटेस्ट इन जर्मनी बट गॉस इज द ग्रेटेस्ट ऑल ओवर यूरोप. इन ऑल द इन ऑल द क्या बोलते हैं इन ऑल यूरोप गॉस इज बेस गॉस वाज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन. सो यू कैन जस्ट क्या बोलते हैं सी की क्या आदमी था वो. ऑल्सो गॉस बिलीव दैट भाई ये कौन बोल रहा है? अजलान मे बी म्यूट योरसेल्फ. So it is believed that Gauss adorned every branch of mathematics, but he always held number theory in high esteem and affection. He insisted that क्या बोलते हैं, mathematics is the queen of all the sciences, and the theory of numbers is the queen of mathematics. So with this, we will begin with the basic property of congruence. ये अपना टॉपिक है एंड तुम सबको ऑलरेडी आता है इसके बारे में. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस. ठीक है. तो ये थ्योरी उसने अपनी डिस्क क्वेश्चनर्स अरिथमेटिक के जो उसकी बुक थी उसमें पब्लिश की थी. उसका फर्स्ट चैप्टर था. एंड गॉस इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड इट्स द नोटेशन दैट मेक्स दिस अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक. एंड उसने इसमें एक ये वाला सिंबल यूज किया है जो कि उसने जो अलजेब्रा में हम इक्वालिटी यूज करते हैं वहां से उसने इसको मतलब क्या बोलते हैं वहां से या चोरी करा बट एक एक और लाइन लगा दी. अ, बताऊंगा क्योंकि अलजेब्रा में इसका मतलब इक्वालिटी होता है, राइट? तो सिमिलर चीज यहाँ पे भी होगी जो हम अभी देखने जा रहे हैं. तो गॉस के हिसाब से मैं पहले तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो लिखी है वो कोट करता हूँ. इफ अ नंबर n measures the difference between two numbers a and b, then a and b are said to be congruent. Modulo नहीं, congruent with respect to n, else they are incongruent. And he used this notation. Let us ये अपनी definition है. Let us fix n, and n is a fixed positive number. Then the two integers a and b are said to be congruent modulo n, and it is simple symbolized by a is congruent to b mod n. ये हम तब बोलेंगे if, जैसा उसने ऊपर बोला कि if the difference between two number if n measures the difference between two numbers, that means जो a माइनस बी है ना उसको n डिवाइड करता है. If n is a fixed positive number, then A is said to be congruent to B modulo n if n divides the difference A minus B. या फिर तुम बोल सकते हो A minus B is K times n. ठीक है, where K is any constant.
क्लियर है ये? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, एंड यू गाइस प्रोबेबली नो दिस. So, like, we can actually, I can give you an example, even though everyone is aware. So, if I take n as 7, then I can say 3 is congruent to 24 mod 7. Why? Because the difference is divisible by 7, as you can see. And similarly, if two numbers a and b are so that n does not divide a minus b, then we say that a is not congruent or a is incongruent to b mod n. Even though we'll rarely use this, but yeah. So if you see this कि कोई भी दो इंटीजर्स तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉड्यूलो वन. तो अपन क्या करते हैं कि एक काम करते हैं अपन, जो एन की वो वैल्यू है ना, अपन वो वन से बड़ी मानेंगे, क्योंकि एन इज इक्वल टू वन एक बहुत ही ट्रिवियल केस है जो कि इंटरेस्टिंग नहीं है अपने लिए. ओके. सो लेट्स से वी हैव एनी इंटीजर ए, और उसको मैं ए से इसको मैं किसी नंबर एन से डिवाइड करूं, तो मेरे को डिवीजन एल्गोरिथम बताता है ए इज इक्वल टू क्यू एन प्लस आर, वेर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन एन. ठीक है. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस आई कैन से ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड एन. नाउ बिकॉज आर कैन टेक n choices, r has basically n different choices, right? So we can say that any arbitrary integer is congruent to exactly n of the values. That is, any integer a will be congruent to n different values, either 0, 1, 2, and so on till n minus 1. Is this clear? R can take n different values, right? It can either be 0, 1, or and so on in n minus, right? So any integer is congruent to n, exactly one of the following values, like 0 to n minus 1. And अगर वो a is congruent to 0 mod n है, then it can only happen if n divides a. Now, ये जो integers है ना, 0, 1, 2 and so on, इसको बोलते हैं, इस चीज को रुको, इस चीज को बोलते हैं द सेट ऑफ, ये बस टर्मिनोलॉजीज हैं, तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यूज मॉड्यूलो एन. सेट ऑफ लीस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यूज मॉड्यूलो एन. मैं बताऊंगा इस लीस्ट का मतलब, तुम सोच सकते हो कि अपन डिस्कस करते हैं एक बार पहले. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ। और दोस्त क्लियर है? हाँ। ओके. हम्म। तो ये जो सेट है, इट्स कॉल्ड द सेट ऑफ लीस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यूज मॉड्यूलो एन. एंड इन जनरल, if we have a collection of n integers, let's say we have a collection of n integers, say a1, a2, and so on, an, then it is said to form a complete set, a complete set of residues, set of residues, modulo n, n, if every integer, every integer in this set, नो, इफ एवरी इंटीजर, जो नेचुरल, जो इंटीजर्स के सेट में कोई भी इंटीजर ले लो, इफ एवरी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू
exactly 1 of the AK। जैसे A1 A2 एंड सो ऑन AN को हम बोलेंगे कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज मॉड्यूलो N। अगर तुम कोई भी इंटीजर ले लो, तो अगर अपन मॉड n लें, तो एनी इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू एग्जैक्टली वन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट मॉड्यूलो n। एम आई क्लियर? Yes. और इन अदर वर्ड्स आई कैन से A1 A2 एंड सो ऑन AN आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो टू 0 1 2 and so on n-1 in some order. Let me give you an example. Let's take n की वैल्यू मैं 7 फिक्स करता हूँ। तो -12 -4 11 13 22 82 एंड 91। नाउ इफ यू गाइज नोटिस, यू कैन सी दैट जो 12 है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod n। ओके, 2 mod 7। -4 is congruent to 3 mod 7. 11 is congruent to 4 mod 7. 13 is congruent to 6 mod 7. 22 is congruent to 1 mod 7. 82 is congruent to 5 mod 7. And 91 is congruent to 0 mod 7. So you can see that A1, A2, A3, A4, A5, A6, and A7 are congruent to 0, 1, 2, and so on n-1 in some order. Okay. और ये दोनों बात इक्विवेलेंट है। ओके, ये दोनों बात सेम ही है। इस अगर मैं इस इसका देखूं, तो ये अपना एक कंप्लीट सेट बन रहा है। -12 -4 11 13 80 22 82 91 कैसे कंप्लीट सेट बन रहा है कि तुम कोई भी इंटीजर ले लो। जैसे टेक एन इंटीजर, लेट्स से आई टेक कोई भी इंटीजर, बताओ तुम मुझे। बड़ा मत बताना जरा, वो तो -12 के लिए 2 क्यों होगा? क्योंकि -14 7 से डिविजिबल है। 7 होगा ना डिवाइड, तो 5 आएगा ना। हैं? ओ माय बैड, माय बैड। तो मुझे कोई भी इंटीजर बताओ, ज्यादा बड़ा मत बताओ। 12 8। तो 12 और 8 को जोड़ के 20 ले लेता हूँ। तो तुम नोटिस करो, जो 20 है ना, 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 7, राइट? और आई कैन से 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13 mod 7। तुम नोट करो कि इन 7 नंबर्स में से ये किसी और के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। 20 इज ओनली कॉन्ग्रुएंट टू 13 mod 7। और कोई नंबर के साथ ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। आई कैन नॉट से 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू -12 -4 इज इनकॉन्ग्रुएंट टू -12 -4 11 22 82 91। किसी और नंबर्स के साथ इनकॉन्ग्रुएंट होगा, सिर्फ और सिर्फ 13 के साथ ही कॉन्ग्रुएंट होगा। सो एनी कलेक्शन ऑफ n integers is form a complete set if every integer is congruent to exactly one of the AK modulo n। Is this clear? सबको क्लियर है? Yes. और रजलान? हाँ। ओके, किस किस के लिए ये सारी बातें न्यू है? आई डोंट थिंक सो किसी के लिए भी है। और दिस इज न्यू फॉर यू, राइट? Yeah, please. Congratulations. क्या क्या क्या? बेसिक्स आते हैं खाली, दिस इज न्यू। क्या?
तो वो मैं लीस्ट इसको लीस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले ये नॉन नेगेटिव्स में सबसे लीस्ट सेट यही बन सकता है। उसके अलावा तुम सेट जाओगे तो फिर तुम नेगेटिव नंबर्स में जाओगे या फिर तुम जीरो को स्किप करके, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन 7। ये जो सेट है ये भी एक कंप्लीट सेट है, लेकिन ये लीस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यू का सेट नहीं होगा। लीस्ट वाला सेट यही होगा। ठीक है। अ, तो एवरी कंप्लीट सेट में वो जो नॉन ये लीस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यू का सेट है ना, तो हर एक एलिमेंट इसमें से कोई ना किसी एलिमेंट के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, मॉड्यूलो एन। नाउ we will we will try to prove a theorem कि for any arbitrary uh, integers a and b, a is congruent to b mod n if and only if a and b leave same remainder when divided by n। ठीक है। ये अपनी थ्योरम है एंड वी हैव टू प्रूव दिस। सो बहुत इजी प्रूफ है। अपन को यहाँ नोट करो, तुम इफ एंड ओनली इफ है तो अपन को पहले शो करना है कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, एंड इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू। ओके, तो अपन को दो वे में प्रूव करना है। तो सबसे पहले मान लो ए इज इन फैक्ट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, देन आई कैन से ए माइनस बी के एन होगा, और ए इज इक्वल टू बी प्लस के एन। अब जब मैं b को n से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, तो n क्यू प्लस आर होगा, फिर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन b। अब मैं इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के एन प्लस एन क्यू प्लस आर, जो कि क्या है n के प्लस क्यू प्लस आर, के प्लस क्यू प्लस आर। तो तुम नोट करो, a को जब n से डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर आ रहा है, जब b को डिवाइड करूं तब भी रिमाइंडर आ रहा है। तो मतलब ये बात जब सच है तो ये बात सच है। ओके, क्लियर है ये? हाँ। अब अगर दोनों का सेम रिमाइंडर है तो अगर a को मैं लिख सकता हूँ एन के प्लस रिमाइंडर आर, और b को मैं लिख सकता हूँ एन के टू प्लस आर। अगर दोनों का सेम रिमाइंडर है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा, a माइनस बी इज एन के वन माइनस के टू। नाउ क्योंकि एन ए माइनस बी तो एन से डिविजिबल है, सो आई कैन से बाय द डेफिनेशन ऑफ अपना जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो था कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। ठीक है। तो जब दूसरी बात सच है तो पहली बात आ रही है। क्लियर है ये सबको? हाँ। ओके, ग्रेट। नाउ लेट अस वर्क ऑन अ थ्योरम जो कि हमें थोड़े ऑपरेशंस करने में हेल्प करेगी। तो ये अपनी नेक्स्ट थ्योरम है। वेल, थ्योरम क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये अपन प्रूव कर लेंगे, तो इसलिए मैं थ्योरम बोल रहा हूँ। मान लो कोई एन है जो कि वन से बड़ा है, और ये ऑफकोर्स नेचुरल नंबर है, तो इसको फिक्स कर दिया अपन ने, एन को फिक्स कर रहा हूँ। और ए बी सी डी अगर अपने पास आर्बिट्ररी इंटीजर्स है तो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगी। मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन, और साथ में मैं प्रूव करूं तो ए माइनस ए, क्योंकि ए माइनस ए तो जीरो है और एन जीरो को डिवाइड कर रहा है, तो आई कैन से दिस इज ट्रू। नाउ प्रॉपर्टी बी, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन एंड देन आई कैन से बी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। ना क्योंकि a माइनस बी एन से डिविजिबल है, तो b माइनस ए भी n से डिविजिबल होगा, है ना? तो b वाली प्रॉपर्टी का भी ये प्रूफ हो गया। नाउ लेट्स कम टू प्रॉपर्टी सी। इफ वी हैव
A is congruent to B mod n, and B is congruent to C mod n, ये दोनों बात दी हुई है, देन A is congruent to C mod n। ये कैसे प्रूव करेंगे कि A माइनस बी एन का मल्टीपल है और B माइनस सी भी एन का मल्टीपल है, तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये B और ये भी कैंसिल हो गया, तो A माइनस सी भी एन का मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी C का भी ये प्रूफ हो गया। क्लियर है सबको? यस। ओके, नाउ कम्स प्रॉपर्टी डी, कि if A is congruent to B mod n and C is congruent to D mod n, then A plus C is congruent to B plus D mod n, B plus D mod n, and and AC is congruent to BD mod n। तो ये प्रूफ भी कर सकते हैं कैसे कि ए माइनस बी के टाइम्स एन कुछ होगा, सम मल्टीपल ऑफ एन, और सी माइनस डी का भी ऐसा ही कुछ होगा, तो सी माइनस डी इज ऑल्सो के वन ले लिया तो इसको के टू एन ले लिया, आप दोनों को ऐड कर दिया तो ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू के वन प्लस के टू एन। और तुम देखो कि ये दोनों इंडिविजुअल सेपरेट क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन हो रहा है जो कि एन का मल्टीपल है, तो आई कैन से ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉड एन। क्लियर है ये वाला प्रूफ? हम्म। अब अपन को दूसरी बात प्रूव करनी है, तो उसको भी करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे कि AC क्या आ जाएगा, AC को लिख सकता हूँ B+K1n टाइम्स D+K2n, और तुम ये देखो तो ये क्या आ जाएगा, BD+N का ही कोई मल्टीपल, तो तुम नोट करो कि AC माइनस BD N का ही एक मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BD मॉड n। ठीक है, प्रूफ क्लियर है सबको? हाँ। ओके ग्रेट। फिर अपनी अगली प्रॉपर्टी कि अगर A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n है, देन A प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस सी मॉड n। ये बात तो सच है क्योंकि A और B दोनों ही कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो n है, और वी नो दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी से C इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड n। तो अब इसमें अपन को D वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो दोनों में ऐड कर सकते हैं, तो ये बात आ जाएगी कि A प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू B प्लस सी मॉड n। ठीक है, ये क्लियर है? एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉड n। दोनों में तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये भी अपन कैसे यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि क्लियरली C इज कॉन्ग्रुएंट टू C मॉड n और A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो गया अपना काम। ठीक है, नाउ नाउ कम्स लास्ट प्रॉपर्टी, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड n, देन फॉर K belonging to natural numbers, A to the K is congruent to B to the K mod n। ये बात अपन कैसे प्रूव करें कि इसको इंडक्शन से प्रूव कर लो कि क्लियरली ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, के की वैल्यू वन लेने पे तो काम कर रहा है कि के की वैल्यू वन के लिए, तो ये बात सच है। मान लो कि ये किसी आर्बिट्ररी के लिए होल्ड करता है, मान लो किसी आर्बिट्ररी एन के लिए होल्ड करता है, तो ए टू द एन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टू द एन मॉड एन। नाउ बिकॉज ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा ए टू द एन प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टू द एन प्लस वन मॉडर्न। तो अपने पास इंडक्शन से आ गया कि व्हेन इट होल्ड्स फॉर सम n, इट विल होल्ड फॉर n प्लस वन, एंड सो बाय इंडक्शन वी हैव कि दिस प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स। क्लियर है ये सबको? हाँ। हाँ। बहुत क्लियर है। ब्रेल में बोल रहा है क्या? बंदा सो गया क्या?
बंदा सो ही गया लग रहा है। बोल भी दे। हो जाऊंगा 1 मिनट। हाँ या ना तो बोल। हम्म। तू सो रहा था क्या? नहीं। तो बोल क्यों नहीं रहा था कब से? कब से मतलब क्या, कब से? कब से का क्या मतलब है? मैं कब से बोले जा रहा हूँ, तू बोल ही नहीं रहा। नो वे भाई। ऐसे माइनक्राफ्ट मत खेला कर क्लास के बीच में। चलो। आई कैन अश्योर यू माइनक्राफ्ट तो नहीं खेल रहा था मैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एक एक जोरदार सवाल कर, वेल जोरदार तो क्या ही है, मतलब मैं तुम्हें बस बताना चाहता हूँ कि हाउ पावरफुल दिस टूल इज। तो तुम्हें 41 का डिविजिबिलिटी रूल आता है ना? सर वो एक वेबसाइट से देख कर आओ एक बार। अरे भाई, बार बार ओपन करूंगा तो। 41 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तुझे? क्लास में सबको पता है तेरे अलावा। पता था ना। क्या क्या था, होगा? रुक याद करने दे। अबे इसमें याद क्या करना है, सामने तो दिखता है। लास्ट डिजिट को हाँ फोर हाँ, से ये था मल्टीप्लाई ना करके। 42 का। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ये तुम अप्लाई करके 2 to the 20 - 1, इस नंबर पे 41 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके ये करो, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? क्या? 2 to the 20 - 1 में 41 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर। कैसा करूँ? कैसे क्या कर, निकाल ये नंबर। थैंक यू। 2 to the थाउजेंड 20 निकालूं? 1024 का स्क्वायर ही तो है। ये तो बहुत आसान हो गया। अ, बस 48,575। ये कुछ ज्यादा ही आसान हो गया यार। तो अपन इसको थोड़े हार्ड तरीके से करते हैं अभी। देखो, अम, तुम नोटिस करो कि 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। तो 2 का पावर 5 इज 32, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -9 mod 41। अब स्क्वायर कर दो तो 2 to the 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 81 mod 41। नाउ तुम नोटिस करो, 82 तो 41 से डिविजिबल, सो आई कैन से -1 mod 41। 81 को ये लिख लो। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। हाँ, तो बस अब स्क्वायर हम्म। करना है, तो 2 to the 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 41। ठीक है। इवन दो पहले वाला तो मेथड इजी था, लेकिन वो इजी इसीलिए था क्योंकि अपन इतना जल्दी आइडेंटिफाई कर दिया कि 2 का 1025 41 का मल्टीपल है। ठीक है। क्लियर है? या यस। ठीक है, तो फालतू फालतू सवाल दे रखे हैं। ये अपना चैप्टर तो खत्म हो जाएगा जल्दी से। फिर अपन जापानीज, सॉरी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम भी करने वाले हैं, जो मेरे को बस वही मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है इस चैप्टर में। बाकी तो कुछ है नहीं खास। तो एक थ्योरम देखते हैं कि थ्योरम ये है कि तुमने अगर नोट किया हो कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है इसमें कहीं डिवीजन है ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यही है। तो डिवीजन क्यों नहीं है भाई? कि
अपन ये बोल दे, अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि ये अपनी नेक्स्ट थ्योरम है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉड एन, तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, ऐसा नहीं बोल सकते। अपन अब देखने वाले हैं ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। तो अपनी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ AC is A is sorry AC is congruent to BC mod n। तुम्हें बाहर से कोई और आवाज आ रही है क्या? अभी आई थी, वापस रुक गई। अभी आ रही है? नहीं, आ रही है। अरे यार कोई पागल वो अपने घर बनवा रहा है तो वो चालू कर दी मशीन उसने। कोई घर ना। बनवा रहा है। अरे यार रेनोवेट कर रहा है। हम्म। तो अगर AC is congruent to BC mod n है, then then A is congruent to B mod B mod n by D, where D is actually the GCD of C and N। ठीक है, तो ये अपना थ्योरम है, ये अपन प्रूव करने वाले हैं। नाउ क्लियरली अपन को पता है कि सी टाइम्स ए माइनस बी जो है वो एन से डिविजिबल है। मतलब सी ए माइनस सी बी एन से डिविजिबल है, तो इसको लिख लेता हूँ के एन। ठीक है। अब मान लो कि जीसीडी ऑफ सी कॉमा एन क्या है? डी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं सी को लिख सकता हूँ डी आर, और एन को लिख सकता हूँ डी एस, वेर आर और एस क्या होंगे? को प्राइम होंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अब क्योंकि आर और एस को प्राइम है, अगर मैं इससे इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा ए आर माइनस बी आर इज इक्वल टू के एस, या फिर आर ए माइनस बी इज इक्वल टू के एस, यही आता है। अब ये यहाँ पे जोरदार बात यह है कि एस डिवाइड्स आर ए माइनस बी, बट आर और एस का तो जीसीडी वन है। आर और एस का तो जीसीडी वन है, तो यूक्लिड का जो लेमा है उससे अपने पास आएगा एस डिवाइड्स ए माइनस बी। क्लियर है? हम्म। ओके, अब मैंने माइक में से मिट्टी निकाल दिया, तो अब आवाज क्लियर आनी चाहिए। हम्म। हाँ, काफी बेटर है। एस डिवाइड्स ए माइनस बी। ओके। तो इसका मतलब ए इज कॉन्वेंट टू बी मॉड एस। लेकिन एस क्या है? एस तुम नोटिस करो तो एन बाई एन डी बाई है। डी। तो ये अपना थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है। नाउ एक चीज ये है कि तुम सोचो कि अगर एन एन और सी का जीसीडी अगर वन होता, तो अब तो मतलब थोड़ा बहुत ही अच्छा हो जाता ना कि मैं बोल देता सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मॉड एन, अगर ये बात सच है। और एन और सी का जीसीडी जो वन है, तो इसमें मैं कॉमन फैक्टर को आराम से कैंसिल करके बोल देता ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, क्योंकि एन बाई डी जो है, लेकिन वो जीसीडी एक्चुअली वन ही है, तो एन बाई डी भी एन ही आया। ठीक है। तो ये अपन तभी कर सकते हैं जब सी और एन दोनों को प्राइम है। क्लियर है? हम्म। हाँ। तो हो गया अपना, मतलब अब चैप्टर का एक पार्ट हो गया। चैप्टर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, मैं बताता हूँ। ये तो अपना पहले क्या बोलते हैं, ये बेसिक थ्योरी। भाई तेरे माइक को क्या हो रहा है बीच बीच में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मत समझ। ये बेसिक थ्योरी। दूसरा है अपने पास बेस सिस्टम। एंड तीसरा है अपने पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। तो अपना ये पार्ट खत्म हो गया। तो अब मतलब अपन को सवाल करने पड़ेंगे। तो अभी अपन सवाल करते हैं। ये कौन है भाई? ये अजान अच्छी लाइन खींची है।
नाउ अपन सवाल करते हैं। तो तुम अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना अब कॉन्फिडेंस मॉड्यूलर यूज करने में, क्योंकि अब तो अपन वही पढ़ रहे हैं। तो तुम मुझे बताओ कि 2 का पावर 50 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी। 7 से डिवाइड करने पर जल्दी करो यार, मेरा तो आ गया आंसर। 5। 5? 5? मेरा आंसर 4 है। 4 है। दिस इज अजलान, दिस इज फातिमा। नाउ, और तो तेरा क्या है? इन दोनों का एवरेज करके 4.5 मत बोल देना। 8 होगा भाई, 8। 8? जोरदार रिमाइंडर निकाले हो भाई। 7 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर आ रहा है, वाह। तो इसको कैसे करना है कि 2 का पावर 6 इज 64 विच इज कॉन्वेंट टू 1 mod 7। ओके। नाउ जस्ट दोनों की पावर कर दे 8। तो ये 1 आ जाएगा। अब 2 का पावर 48 1 आ रहा है, तो अब तेरे को कुछ नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। तो ये 2 का पावर 50 हो जाएगा। ऐड कर दिया, माय बैड। क्या? 2 के बाद 6 जाना ही क्यों था, 2 के ऊपर ही कर लेता है। क्योंकि पावर 2 में हो रहा था। तुम लोग एक साथ बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। की पावर 3 में ही हो जाता आपका काम। 2 की पावर 3 में ही हो जाता है। हाँ। ओके। एक और चीज, मैंने वो मल्टीप्लाई की जगह ऐड कर दिया, इसलिए मेरा 1 + 4 5 आ गया। अच्छा। सॉरी। कोई नहीं। और बस क्लियर है ये? या। क्या? हाँ हाँ। ओके। यार ये मेरा नेबर एक तो यार। भाई नेबर तेरा माइक को ही रेनोवेट कर रहा है क्या? ये सवाल करो कि 41 का पावर 65 इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा रिमाइंडर, जल्दी। किससे डिवाइड करने पे? 7 से है। अरे वाह। जल्दी करो जल्दी। अरे यार तुम स्लो आदमी हो यार, मेरा आंसर आ जाता है तुम बताते हैं। ओ माय गॉड। अच्छे सवाल है इसमें वैसे। -1। जोरदार रिमाइंडर 6। बोले हो। 6। 6। 6 6? यार। हाँ तो भैया, आप इतने खतरनाक रिमाइंडर क्यों बोलते हो? अरे यार 6, हाँ ओके। नहीं, अपन रिमाइंडर की डेफिनेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। हाँ पता है, वो बोरिंग से ठीक है, माइनस तो में अपन एक चले काम जाते। करते हैं कि ये बताओ कि इस नंबर का रिमाइंडर बताओ जब 39 से डिवाइड करें। अरे ये क्या, डिवाइड करने पे रिमाइंडर भाई क्या तेरा आएगा? इतना लैग कर रहा है। लैग कर रहा है? दूसरों को भी कर लग रहा है क्या?